انڈیا میں اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات میں صرف 2 سال میں 97% اضافہ۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ بڑی تعداد میں نفرت کا نشانہ مسلمان بن رہے ہیں۔ یہ اعداد و شمار انڈیا ہیٹ لیب نے ریکارڈ کیے ہیں اور تشدد پر اکسانے والوں میں اکثر جانی پہچانی سیاسی شخصیات بھی ہوتی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مسلمان اور دیگر اقلیتیں ڈر کے ماحول میں جی رہی ہیں۔ حکومت ان تمام الزامات سے انکار کرتی ہے۔ میں ہوں خالد کرامت اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہنما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا ورلڈ اکنامک فورم میں کینیڈا کے وزیر اعظم کی عالمی ضابطوں اور امریکی غلبے کے بارے میں تقریر سن کر لوگ حیران ہو گئے۔ مارک کارنی کی تقریر پر تفصیل سے بات کریں گے۔ کیلیفورنیا میں کم عمری کی شادیوں کے خاتمے کی مہم میں چیلسی کلنٹن نے بھی اپنی آواز شامل کر دی ہے۔ کیلیفورنیا میں شادی کی کم از کم قانونی عمر مقرر نہیں ہے۔ ایک امریکی تھنک ٹینک نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا میں گزشتہ 2 برس میں نفرت انگیز تقاریر کی تعداد میں 97% اضافہ ہوا ہے۔ یہ بہت ہی غیر معمولی اضافہ ہے۔ یہ نمبر سینٹر فار دی اسٹڈی آف آرگنائز ہیٹ کی جانب سے شائع کیے گئے ہیں۔ یہ واشنگٹن میں قائم ایک جانبدار تھنک ٹینک ہے۔ رپورٹ کے مطابق انڈیا ہیٹ لیب نے 2025 میں اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں اور مسیحی برادری کو نشانہ بنانے والے 1318 نفرت انگیز تقاریر کے واقعات ریکارڈ کیے۔ 2023 میں یہ تعداد 668 تھی۔ کل 1279 تقاریر یا 98% میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جن ریاستوں میں ایسے واقعات سب سے زیادہ ریکارڈ کیے گئے ان میں اتر پردیش میں 267، مہاراشٹر میں 193، مدھیہ پردیش میں 172، اتراکھنڈ میں 155 اور دلی میں 76 واقعات تھے۔ نفرت انگیز تقاریر کے 88% واقعات ان ریاستوں میں ہوئے جہاں یا تو براہ راست یا پھر اتحاد میں حکمراں جماعت BJP کی حکومت ہے۔ 23% تقاریر میں تشدد کی واضح کالز دی گئیں۔ BJP نے اس رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ غیر ملکی ایجنسیاں ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے ایسی رپورٹ شائع کرتی ہیں۔ انڈیا میں اکثر اقلیتوں کے خلاف تشدد پر اکسانے یا نفرت پر مبنی تقاریر میں جو ویڈیو وائرل ہوتی ہیں ان میں سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی نظر آتے ہیں۔ ماضی میں حکومت نے اس طرح کی ویڈیوز کے منظر عام پر آنے کے بعد اس نوعیت کے الزامات کی بھی تردید کی ہے۔ اور اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت دلی اسٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہیں BBC نیوز اردو کے صحافی مہتاب عالم۔ مہتاب، یہ بتائیے گا کہ انڈیا میں اس رپورٹ پر کیا رد عمل ہے؟ دیکھیے خالد، جیسا کہ آپ نے خود کہا، اصل میں 2 طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ایک تو جو حکومت کا رد عمل ہے اور جو رولنگ پارٹی اور رولنگ الائنس ہے اس کا رد عمل ہے، اور ایک اپوزیشن کا رد عمل ہے۔ جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ حکومت کا جو رد عمل ہے اور ان کے جو الائز ہیں ان کا رد عمل ہے، انہوں نے اس رپورٹ کو مسترد کیا اور یہ کہا ہے کہ دراصل اس طرح کی رپورٹ جو ہے وہ ہندوستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ دوسری طرف جو اپوزیشن ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کو لے کر کے ایک لمبے عرصے سے قانون سازی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ قانون ہی اس کا حل ہے۔ جب تک ایسے لوگوں پر قدغن نہیں لگایا جائے گا، جب تک قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی ان کے خلاف، تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اچھا، یہ جو رپورٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو واقعات ہیں ایسی ریاستوں میں ہو رہے ہیں جن میں یا تو BJP کی حکومت ہے یا ان کا اتحاد ہے وہاں پر۔ اس بارے میں BJP اور حکومت کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، ان کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں، اور ان کی جو پالیسی ہے وہ سب کا ساتھ سب کا وکاس والی پالیسی ہے۔ لیکن جو اپوزیشن کے رہنما ہیں اور جو سیاسی مبصرین اور جو تجزیہ نگار ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کی کہنی اور کتھنی میں دونوں میں کتھنی میں فرق ہے، اور یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو حکومتی چاہے FIR ہوں یا مقدمے ہوں اس کی بنیاد پر ہی ہے، تو اس کو پوری طرح سے مسترد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کیا کسی ریاست نے جن کا نام بھی اس رپورٹ میں آیا ہے انہوں نے ہیٹ سپیچ پر یا نفرت پر مبنی تقاریر پر قابو پانے کے لیے کوئی قانون سازی کی ہے یا کوئی کوششیں کی ہیں؟ جی، تو ابھی حال میں ہی کرناٹک ایک ریاست ہے ساؤتھ انڈیا میں،
उन्होंने इसको लेकर के एक कानून बनाया है जिसकी कि वहाँ की जो अपोजिशन बीजेपी, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की हुकूमत है और जो बीजेपी है वो वहाँ अपोजिशन में है, तो उसकी उन्होंने मुखालफत भी की है। तो वहाँ उन्होंने कानून साजी की है इसको लेकर के, और इसको एक सिल्वर लाइनिंग के तौर पर देखा जा रहा है सियासी मुबस्सिरीन और जो सोशल एक्टिविस्ट है उनकी तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ जो कानूनी माहिरीन हैं, जो कानून को समझते हैं, जो कोर्ट में इन मामलात की पैरवी करते हैं, उनका कहना ये है कि सिर्फ कानून बनाना ही काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि माजी में भी ऐसा देखा गया है कि कानून तो हैं, ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनरी जो कानून है हिंदुस्तान का उसमें कवानीन उसमें ऐसे प्रोविज़न्स नहीं हैं जिसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन कानून के निफाज का किस तरह से होता है। और कई दफ़ा ये देखा गया है कि इन कवानीन का इस्तेमाल उन्हीं के ख़िलाफ़ हो जाता है जिन पर जो कि तशद्दुद के शिकार रहे हैं, और तो ये एक बड़ा मसला समझा जा रहा है। दिल्ली से मेहताब आलम, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। और अब कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म की उस तकरीर पर बात करते हैं जिसने सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बर्पा कर दिया है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम में तकरीर की और बकौल लोगों के उन्होंने आलमी ज़ाब्तों का जो निज़ाम है और इसमें जो अमरीकी गलबा है उससे पर्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हम जानते थे कि आलमी ज़ाब्तों पर मबनी निज़ाम की कहानी कुछ हद तक झूठी थी। इन अल्फाज ने लोगों को हैरान किया। बाकी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तिजारत के कवानीन गैर मुतनासिब तौर पर लागू किए जाते हैं, और हम जानते थे कि आलमी सतह पर कवानीन का इतलाक इस बुनियाद पर भरपूर तरीके से होता था कि मुल्जिम की शनाख्त क्या है और मुतासिर कौन हुआ है। ये अफसाना कारआमद था। अमरीकी गलबा अवामी सतह पर अशियाए ज़रूरत मुहैया करता था, समंदरी रास्ते खोलता था, मुश्तरका हिफाजत का निज़ाम और तनाज़ात के हल का निज़ाम था। ये सौदा अब मज़ीद कारआमद नहीं रहा। मार्क कार्नी के इस वीडियो क्लिप को लोग बहुत शेयर कर रहे हैं और बहुत से बड़े नाम इस पर कमेंट कर रहे हैं। चार्ल्स हैकर बहुत से अहम थिंक टैंक्स से वाबस्ता हैं। वो कहते हैं मार्क कार्नी ने डावोस में आग लगा दी। एलिस्टर कैम्बल साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर के मुशीर थे। वो असर रसूख रखते हैं। वो कहते हैं दूसरों को उनके कदमों पर चलना चाहिए। सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई लिखते हैं जो लोग बदमाशी के सामने डट जाते हैं उनकी इज़्ज़त की जाती है, ताकत के आगे झुकने वालों की नहीं। मार्क कार्नी की तकरीर पर आने वाले दिनों में भी यकीनन बात होती रहेगी। सन 2000 से 2021 के दौरान अमेरिका में तकरीबन 3,15,000 नौ उम्र बच्चों की शादियां हुई, जिनमें ज़्यादातर लड़कियों की शादियां बालिग मर्दों से हुई। इस साल रियासत मेन, ऑरेगन, मिजूरी और वाशिंगटन डीसी में चाइल्ड मैरिज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कैलिफोर्निया में बच्चों की शादी की उम्र की हद मुकर्रर नहीं है और हुकूमत की जानिब से बच्चों की शादियों की उम्र को ट्रैक भी नहीं किया जाता। लेकिन माहिरीन का कहना है कि कैलिफोर्निया, जिसे गोल्डन स्टेट भी कहा जाता है, वहाँ हर साल 8,000 कम उम्र बच्चों की शादियाँ होती हैं। समाजी कारकुन कहते हैं कि कैलिफोर्निया में यह मसला ख़ास तौर पर पेचीदा है। बीबीसी के रेगन मॉरिस की रिपोर्ट, खदीजा आरिफ की ज़बानी। मेरा सुबह में उससे तारुफ हुआ और रात को उससे मेरी शादी हो गई। मेरे लिए वो एक अजनबी था। सारा की उम्र 15 बरस थी जब उनके वालिद ने उन्हें उनकी उम्र से 2 गुना बड़े शख्स से शादी करने पर मजबूर किया। मुझे उसकी बीवी बनने पर मजबूर किया गया और उस रात मेरी जिंदगी बदल गई। 16 बरस की उम्र में वो माँ बन चुकी थी। स्कूल से हटा लिया गया और उनसे तवक्को की गई कि वो अपनी बच्ची की परवरिश भी ऐसी ही करे कि वो एक बीवी बने और फिर एक माँ। तो सब बदल गया। मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ मेरे बारे में नहीं, उससे कहीं बड़ी है और जो कुछ मेरे साथ हो रहा था उसका असर उस पर भी होगा। मुझे पूरी तरह इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ जो हुआ वो गलत क्यों था, लेकिन मुझे ये मालूम था कि मुझे उसके लिए इस शादी से निकलना होगा। I didn't know the entirety of what had happened to me why it was so wrong, but I knew that I had to get out for her. कैलिफोर्निया में शादी की कोई मिनिमम एज नहीं है, बस बच्चों को वालिदैन की रजामंदी चाहिए। जिन बच्चों की इस तरह की शादियां हुई हैं वो चाइल्ड मैरिज पर पाबंदी चाहते हैं ताकि शादी के नाम पर उनका इस्तेहसाल करने वालों से उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके।
ब्रिटनी बी ने अपने घर के माहौल से बचने के लिए 17 बरस की उम्र में शादी कर ली। 14 from him, she was 20 years old. जब उसने मुझ पर तशद्दुद शुरू किया तो उसकी उम्र 20 वर्ष थी। वो बालिग था। मैं खुद से कहती थी कि जो तशद्दुद वो मुझ पर कर रहा है वो काबिल कबूल है। वो कभी कभी मुझे थोड़ी सी आज़ादी भी देता था। मैं एक कैद से दूसरी कैद में चली गई थी और लोगों की ये कहने की जुर्रत होती थी कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की। बच्चे ऐसे फैसले नहीं करते, वो रजामंदी का मतलब नहीं समझते। And people have the audacity to tell me that I made a choice. Kids don't, they can't consent. चाइल्ड मैरिज पर पाबंदी की मुहिम में चेल्सी क्लिंटन जैसी बाअसर शख्सियात का शामिल होना एक मुस्बत कदम है। उनका कहना है कि बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि कैलिफोर्निया में शादी की कोई मिनिमम उम्र ही मुकर्रर नहीं की गई है। चेल्सी क्लिंटन कह रही हैं कि वो लोगों के दिल और दिमाग को बदलने की कोशिशों में यकीन रखती हैं, लेकिन वो ये समझती हैं कि क़वानीन को बदलने की भरपूर कोशिशें की जानी चाहिए और इन क़वानीन पर अमल दरामद हो ताकि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। क़वानीन बदल रहे हैं। एक दहाई पहले पूरे अमेरिका में चाइल्ड मैरिज लीगल थी, अब 16 रियासतों में ये गैर कानूनी है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कैलिफोर्निया यानी गोल्डन स्टेट में भी ऐसा ही हो। अब एक नज़र डालते हैं दुनिया भर की बाकी खबरों पर। स्पेन के इलाके कैटलोनिया में एक ट्रेन हादसे में ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गया है। इस हादसे के बाद तमाम मज़ाफ़ाती रेल सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई हैं। गुज़श्ता 3 दिन में स्पेन में पेश आने वाला ये दूसरा ट्रेन हादसा है। 3 दिन पहले एक पटरी से उतरने वाली एक ट्रेन एक तेज़ रफ्तार ट्रेन से टकराई, जिसके नतीजे में 39 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए थे। दोनों वाक़यात की तफ्तीश जारी है। जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्योंग का कहना है कि शुमाली कोरिया हर साल इतना जौहरी मवाद तैयार कर रहा है जो 20 वॉर हेड्स को मुसल्लह करने के लिए काफ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्योंगयांग तवील फासले तक मार करने वाली अपनी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को बेहतर बना रहा है और वो जल्द ही पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन सकता है। जापान की एक अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे का कत्ल करने वाले शख्स को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। टेत्सुया यामागामी ने कत्ल के इल्ज़ामात कबूल कर लिए थे। शिंजो आबे पर 3.5 साल पहले एक इंतखाबी जलसे के दौरान जानलेवा हमला किया गया था। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ करदा और अमेरिका की हिमायत याफ्ता बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर इत्तफाक कर लिया है। हालांकि इससे कबल उनके दफ्तर ने इस इदारे की एग्जीक्यूटिव कमेटी की तश्कील पर तनकीद की थी। अमेरिकी सदर की सरबराही में कायम इस इदारे को इब्तिदा में आलमी रहनुमाओं के एक महदूद फोरम के तौर पर पेश किया गया था, जिसका मकसद गज़ा में जंगबंदी की निगरानी करना है। पिछले कुछ दिनों से आलमी शोहरत याफ्ता इंडियन मौसीकार ए आर रहमान के एक बयान के बाद इंडिया में तनाज़ा अब भी बरकरार है। उन्होंने हाल ही में BBC के हारून रशीद को तफसीली इंटरव्यू दिया और इस बात से इत्तफाक किया कि बॉलीवुड में फ़िरका वाराना तासुब बढ़ रहा है और इससे उनका काम भी मुतासर हुआ है। उन्होंने BBC को बहुत से सवालों का जवाब दिया और नुसरत फ़तेह अली ख़ान से मुलाकात के बारे में भी बताया। देखिए ये ख़ुसूसी इंटरव्यू जो उन्होंने BBC एशियन नेटवर्क को दिया था। तो यही वजह है कि खुदा ने हमारे जैसे लोगों को ज़्यादा इख्तियार दिया है ताकि हम अपने अल्फाज से, अपने अमल से, अपने आर्ट के ज़रिए बुराई को अच्छाई से बदल सकें। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने काम के इंतखाब में ज़्यादा मोहतात होना चाहिए? क्योंकि 10-15 साल पहले जब आप किसी फिल्म के लिए म्यूज़िक बनाते थे तो आपको बड़ी हद तक मालूम होता था कि वो कोई मनफी फिल्म नहीं है या इस फिल्म के पीछे बुरी नीयत नहीं है। आज किसी फिल्म का मकसद मालूम करना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हाँ, ये बात सच है, बिल्कुल सच। कुछ फिल्में ख़राब नीयत से बनाई जाती हैं। मैं ऐसी फिल्मों से बचने की कोशिश करता हूँ। आपने कहा था कि आपको फिल्म छावा के साउंड ट्रैक पर बहुत फ़ख्र है। ये वाकई बहुत अच्छा साउंड ट्रैक है, लेकिन ये फिल्म तफरका पैदा करती है। ये फिल्म डिवाइसिव है। मेरा ख्याल है कि इसने इसी तफरके से फ़ायदा उठाया है, लेकिन इसका बुनियादी मकसद बहादुरी को दिखाना था। मैंने डायरेक्टर से पूछा था कि आपको इसके लिए मेरी ज़रूरत क्यों है। उन्होंने कहा ये काम सिर्फ आपसे कराना है। मैंने इस काम को एंजॉय किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि लोग समझदार हैं। आपके ख्याल में क्या लोग फिल्मों से मुतासिर होते हैं? मुझे अपने अंदर से ये मालूम है कि सच क्या है और हेरा फेरी क्या है। इस तरह की फिल्मों से मुझे ये मसला है कि इनमें जब भी कोई मनफी काम दिखाया जाता है तो वो किरदार सुभान अल्लाह, माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा होता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितनी घिसी पिटी बात है। मगर ये इस फिल्म और दूसरी फिल्मों में है।
میں لوگوں کا بہت احترام کرتا ہوں. لوگ بیوقوف نہیں ہیں کہ غلط معلومات سے متاثر ہو جائیں. مجھے انسانیت پر بہت بھروسہ ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ لوگ بہت ذہین ہیں. ان کے اندر ضمیر ہے، دل ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے. لوگ صبح اٹھ کر یہ نہیں سوچتے کہ آج مجھے کتنے لوگوں سے نفرت کرنی ہے. نہیں، یہ تو کسی کے دل میں تیزاب کی طرح ہوگا جو آپ کے دل کو برباد کر دے گا. دل تو وہ جگہ ہے جہاں خدا کا مقدس گھر ہوتا ہے، جس خدا کو آپ بھی مانتے ہیں. لیکن اصل سچ تو دل میں ہوتا ہے. یہیں آپ کی انسٹنکٹس ہوتی ہیں. جیسے نصرت صاحب سے ملنا مجھے لگتا ہے جیسے میری منزل تھی، ایک غیبی مدد. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم نے نصرت صاحب کے ساتھ گانا ریکارڈ کروایا اور 1 مہینے بعد وہ دنیا سے چلے گئے. آپ کو ان سے ملنے کا موقع ملا، اور اگر یہ اس وقت نہ ہوتا تو پھر کبھی نہ ہو پاتا. نہیں، کیونکہ میں نے تو ان سے کئی چیزیں سیکھی جب وہ ممبئی آئے. میں بس ان کے پاس بلا روک ٹوک چلا گیا، ان کے کمرے میں چلا گیا. رات کا 1 بج رہا تھا اور پھر وہ آئے اور بیٹھ گئے، اور پھر ہر دروازہ کھل گیا. ہارمونیم آ گیا، طبلہ آ گیا، اور انہوں نے مجھے کچھ قوالیاں سکھائیں. آپ کو یاد ہے وہ کون سی قوالیاں تھیں؟ تو کچھ تو ہی میری حرم میں فقیر ہے جاؤں، تیری گناہوں تیرے آگے ادا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. اے آر رحمان کا لمبا انٹرویو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں. youtube.com/BBC اردو پر آئیں. اس انٹرویو کے علاوہ آپ جہانما کے سارے پروگرام ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں. پلے لسٹ موجود ہے، جہانما کے نام سے سرچ کریں. آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی. کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک bbc.com/urdu دیکھتے رہیے. خالد کرامت کو اب اجازت دیجیے.